Sameer Malik, that's your Yeah, real name, but they all know you by the name of Khabri. yeah, true. Khabri of Big Boss, that big man on Yeah, Twitter, social media, who everybody talks about, and we also shall talk about you today. But first, tell me, yeah, Sameer, or should I mm, call you Khabri? This is your first interview. yeah. This is my first face interview I stand with corrected. anyone. First video interview. Yeah, So, you have always hidden this face, your identity. yeah, So, I think it's what, 10 years? I think 2013 it was that yeah. you broke on the internet and started predicting इसको निकालने वाले हैं बिग बॉस में से, इसको निकालने वाले हैं, ये आने वाला है, ये जीतने वाला है, हारने वाला। तो ये 10 साल Mm. के बाद आपको कैसे लगा कि चलो अब मैं आ ही जाता हूँ पब्लिक के बाहर? Okay, so 10 years back when I started this recovery thing, I was not serious. I used to do it all just for fun, just to enjoy, just for entertainment. I was never serious about it. Hmm. So once I had a conversation with you when I first time revealed my name, I thought that there's nothing wrong if I reveal myself to the world. So I had a conversation with you when my name firstly was revealed to you, and later I did not find any reason to show my identity. Actually, people were not much interested into it. Who am I? Actually, they all were on my page, or they were follow me, or they come to us about just one thing, that's Big Boss. They want news from us. They just want all the updates, whatever we post. That's what matters for everyone. So not everyone was interested to know who Khabar is, but somehow I felt that if we have been doing so much for all the Big Boss fans behind the camera, and they should also know who is behind this account, and I can reveal my identity. Actually, I am not doing any illegal thing, or there's nothing wrong to show to the world who I am. So finally, I thought today I shall talk to you, and No, that's I it. think you deserve to be here. But if you are saying that people are not interested in knowing who you are, let me tell you that ये एक दिखावा है, ये एक मतलब हार को स्वीकार नहीं करते। मैं आपको मीडिया की बात बता रहा हूँ। और Mhm. काफी जर्नलिस्ट को लगता है कि खबरी को कैसे मिला और हमें नहीं मिला, लेकिन हम खबरी के बारे में क्यों लिखें? हम उसकी टिप्पणी या जो भी है वो क्यों उसको हम अपने पेज पर लाएं, अपने पब्लिसिटी मतलब पेज पर लाके उसको पब्लिसिटी दें। वेरएज बाकी सारे सोशल मीडिया की खबरें वो अपने पेज पे लेके आते हैं, फैन क्लब हो, इन्फ्लुएंसर हो, फलाना टिमका। लेकिन वो एक होता है ना कि अहंकार बोल लो उसको, कि हम क्यों Yeah, एक्चुअली ये चीज मैंने नोटिस किया, जो भी मेजर जो पब्लिकेशंस होती है, मैं देखता हूँ एंटरटेनमेंट मीडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, लेकिन जब बिग बॉस के रिलेटेड न्यूज आती है तो वी ब्रेक द न्यूज, वी ब्रेक एवरीथिंग बिफोर देम। सो यहाँ पे फिर वो एक कंपटीशन का उनका आ जाता है कि हाउ कैन वी, आई हैव सीन दिस, कि कोई हमें क्रेडिट भी नहीं देता व्हेन दे copy our news. They just post it like they have broken it, or they got the news from somewhere else. Mostly I have seen जितने भी media channels हैं, they don't actually give the credit. Actually they come to our page, they know this Khabri, whatever news he posts is actually correct, so they trust us, they post our things, but they don't give credit. So yeah, I have seen this thing that actually they are in shock. How does Khabri get it before us घुमा फिरा के वही तो मैं कह रहा when हूँ। it comes to Big Boss, especially? घुमा Yeah, फिरा के वही I तो मैं agree कह with रहा you. हूँ। That's what I wanted to say. ओके। सो ये हाँ, इतनी सारी रेवलेशंस जब आप देते हैं, आपको कभी चैनल से फोन, कलर से फोन, कभी आपको एंडेमॉल से फोन, प्रोड्यूसर से कुछ नहीं आया कि भाई बंद एक्चुअली करो, बस करो? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, पहले तो हम जो भी न्यूज़ पोस्ट करते थे, एक्चुअली वी ट्राई टू कांटेक्ट देम, क्योंकि हमारा जो था, हमने एक मतलब वी वांटेड टू गेट वाइट लिस्टेड, क्योंकि हम प्रोमोज जो कलर से आते थे, वी वांटेड टू पोस्ट देम ऑन ट्विटर। सो
हम कॉपी जब भी वो डालते थे तो वी यूज टू गेट कॉपीराइट्स ऑन दैट, सो आई ट्राइड टू कांटेक्ट देम, बट जब उनको पता चलता अच्छा ये खबरी है तो दे जस्ट यूज टू ब्लॉक मी, नो वन ट्राइड टू टॉक टू मी एक्चुअली। एंड मैंने ये भी सुना है जितने भी लोग बाकी चैनल्स अगर थे उनको अगर बोलते थे खबरी के साथ कोई आपको कांटेक्ट तो नहीं है, so they just want to stay away from me. Actually, they never tried to keep me quiet because they knew he won't keep quiet. Actually, I had nothing to lose. What can they do? So they never tried to do that you should stop and posting all this. But इस साल क्या हुआ जब से ये बिग बॉस ओटीटी आया, when जियो सिनेमा पे आया है, तब से I have been in good terms so far. Actually, it's been around 3 to 4 months that I'm in good terms, not like with colors, but I was in good terms with Geo cinema team. So I don't know what's going to happen in Big Boss right now, but we were never in good terms. और उनने कभी ऐसा किया नहीं कि मेरे को वो रोक सके, क्योंकि कर ही क्या सकते थे. The only thing they could do was white list, black list करेंगे हमें. There's nothing they can do because news पे there can be no copyright on news. So they knew it. We are not going. He's not. We are not. They are not going to affect me anyway. बट समीर, देखा जाए तो उनको भी पब्लिसिटी मिल रही है ना जब आप हाँ, रिवील एक्चुअली करते यही हैं, रीजन है. दे नो. तो अंदर ही अंदर वो खुश भी होंगे. हाउ डू यू नो? हाँ, एक्चुअली नो, बिकॉज व्हेन वी पोस्ट एनीथिंग तो उससे शो को, जब व्हेन सोशल मीडिया टॉक्स अबाउट अच्छा ही इज एलिमिनेटेड, ओके ही हैज बिकम द कैप्टन, तो इससे शो को ही हाइप मिलता है. व्हेन पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट, पोस्टिंग अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया, तो कहीं ना कहीं शो को इससे हाइप मिलता है. तो सो मैं भी, मुझे भी यही बात करते करते यही लग रहा है कि उनका नुकसान क्या है, खास तो कुछ नहीं. because people will watch. If we say कि ये कैप्टन बन गया or that person has been eliminated or these 5 people have been nominated, people will still watch show because खाली nominations का वो खाली एक वो चीज नहीं होती है उस during that 1 hour episode. There are also other things which people want to see, or they also want to see how he got eliminated, what was their reaction, or how people got nominated, or there are other things also. So there's not much loss to them. शायद मैं गलत हूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो आपकी रेवलेशंस आते हैं वो काफी हद तक व्यूअर को मतलब सिंक में रखते हैं शो के, इन्फॉर्म्ड. बिकॉज आज के डेट में आई डोंट थिंक, आई मे बी रॉन्ग, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि कोई भी हर एक एपिसोड देखता है. बहुत कम लोग हैं. पहले जितना था बिग बॉस का जो नशा था, वो जो एक जुनून था, वो आपको भी लगता है कि कम हो गया है? एक्चुअली इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है, कभी ये कम हो जाता है कभी बढ़ जाता है. इफ यू सी बिग बॉस ओटीटी रिसेंटली आया था तो बहुत अच्छा खासा वो चला. तो इसमें कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि किसको आप शो में ला रहे हो. अगर आप कंटेस्टेंट वैसे लाओगे कि जिनमें ऑडियंस इंटरेस्ट ही नहीं है, सपोज बिग बॉस ओटीटी जब तक एलविश यादव नहीं आया था तब तक शो बहुत बोरिंग चल रहा था, कोई भी बहुत कम देख रहे. लेकिन उसकी एंट्री के बाद, उसका क्योंकि अपना भी एक फैन बेस था सोशल मीडिया का, उसका आने के बाद जो शो की टीआरपी थी एकदम ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल आप बोल सकते हो गए. उससे पहले ऐसा क्योंकि सबको पता था अभिषेक मल्हन वही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था. तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ये अभी बहुत इनसे ऑडियंस कनेक्टेड होती है हर जगह सोशल मीडिया पे, तो इनकी पावर बहुत ज्यादा है ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की. तो पहले अभिषेक मलन था तो उसकी वजह से देख रहे थे जो भी लोग देख रहे थे, लेकिन सबको पता चल रहा था यही शो जीतेगा. उसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग थी, कोई कंपटीशन नहीं था. लेकिन जब कंपटीशन आ गया उसके एलविश यादव, तो उसके एंट्री के बाद एकदम से फिर टीआरपी सब कुछ बढ़ गई. तो पीपल आर इंटरेस्टेड, बट वो फिर डिसाइड करते हैं कि अच्छा कौन कंटेस्टेंट आ रहा है, कैसा वो परफॉर्म करेगा, उसके बेसिस पे फिर बहुत सारी चीजें डिसाइड होती है. एक और बात होती है कि आपने इतनी सारी टिप्पणियां की, ये वो मतलब कुछ गलत निकली? क्योंकि मैंने सारी फॉलो नहीं की है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एंड इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीबडी टू फॉलो एनीबडी ऑन एवरीथिंग. या डू दैट. वो कुछ गलत गए? एक्चुअली इस साल मेरी एक न्यूज गलत गई थी, सिर्फ एक, और वो भी उसका रीजन ये था कि उस वक्त मेरा कुछ पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था. तो मैं एक्चुअली बिग बॉस भी फॉलो नहीं कर पाया और अपने सोर्सेज से भी उस एक हफ्ता में कांटेक्ट में था. कोई फैमिली सीरियस प्रॉब्लम आ गई थी 1 डेढ़ हफ्ता के लिए. तो उस टाइम पे क्या हुआ, बाकी भी पेजेस हैं सोशल मीडिया पे जो, क्योंकि वो हमारी न्यूज ही कॉपी करते थे मोस्ट ऑफ द टाइम, और मैंने सुना था कि वो लोग भी शायद ठीक न्यूज देते हैं.
तो उस टाइम क्या हुआ, जब वो न्यूज आई उस टाइम मैंने उनका न्यूज डाला कि अच्छा ये बंदा एलिमिनेट हो गया। हम्म। दैट वाज द फर्स्ट एंड ओनली टाइम जब हम इस बार रॉन्ग हुए, क्योंकि हर जगह सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, हर एक न्यूज पोर्टल डाल रहा था दिस पर्सन हैज बीन एलिमिनेटेड। तो आई थॉट ओके वी आर खबरी, बट हो सकता है इनके पास भी इंफॉर्मेशन होती होगी, तो एक बार हम इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। वी डिड कौन सी नॉट न्यूज, राइट कौन कि सी, एक्सक्लूसिव। कौन सी एक्चुअली न्यूज? डबल एलिमिनेशन का न्यूज इस बार आया था कि जाद हदीद और उसके साथ कोई भी एक कंटेस्टेंट था, कि इस बार जो है डबल एलिमिनेशन हो गया। मिड सीजन में एक डबल एलिमिनेशन का न्यूज आ गया था। तो हमने वो न्यूज, ऐसा नहीं हमने कुछ एक्सक्लूसिव नहीं लिखा उसको, और कंफर्म नहीं लिखा, बिकॉज वी कुड नॉट कंफर्म द न्यूज। वी जस्ट पोस्टेड ओके देयर हैज बीन डबल एलिमिनेशन एंड दीज कंटेस्टेंट आर एलिमिनेटेड। तो दैट वाज द ओनली टाइम जब हम गलत हुए, क्योंकि वो हमने कहीं और जोड़ा। तो फिर आफ्टर दैट ठीक आई स्टॉप कॉपिंग फ्रॉम एनीवेयर और ठीक है, ट्रस्टिंग एनीवन। उसके बाद जितनी भी न्यूज हमने डाली ऑल वर 100% करेक्ट। लेट मी गिव यू अ डोज ऑफ योर ओन मेडिसिन। आप बोलते हैं दूसरे लोग क्रेडिट या नहीं देते हैं मुझे, आपने क्रेडिट दिया उस न्यूज को जब छापा? एक्चुअली क्योंकि वहां पे कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसने वो ब्रेक की, तो क्या हुआ? किसी का नाम नहीं था। वो मैंने क्या, मीडिया तो, वो मीडिया सेक्शन ऑफ द मीडिया तो था ना। चलो बायलाइन नहीं होगा। एक्चुअली मेरे को एक्चुअली क्या होता है कि वो न्यूज इतने सारे सोशल मीडिया पे हैंडल्स ने डाल दी। वो आई एग्री विद यू कि अगर मैंने उस टाइम उसको क्रेडिट दिया होता तो मैं बच जाता, लोग मेरे को नहीं बोलते कि तूने फेक न्यूज दी। दैट वाज माय मिस्टेक नहीं, वो एक्चुअली। बच जाते बट वो क्योंकि अलग वहां पे बात है, कोई ऐसा, मैं कहता हूँ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनसे, आपको भी मिसाल कायम करनी चाहिए कि उनको क्रेडिट देना चाहिए। एक्चुअली आई, उसके बाद मैंने एक दो न्यूज और डाली। सपोज मैंने एक मीडिया का, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, बट मैंने जब भी कोई न्यूज डाली मैंने स्पेशली उनको क्रेडिट दिया है। और दैट वाज द ओनली टाइम, क्योंकि वो मेरे पास भी कंफर्म न्यूज नहीं थी, मेरे को भी लग रहा था सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और कोई ऐसा रेलिएबल मीडिया हाउस नहीं था वो। ट्विटर यूजर्स ने ही डाली थी वो एक्चुअली न्यूज। ट्विटर वो कोई मतलब ऐसा नहीं है कि किसी न्यूज चैनल ने कुछ ऐसा डाला था। कोई ट्विटर यूजर्स पे, ट्विटर यूजर्स ने वो न्यूज डालना शुरू कर दिया हर जगह। उनसे फिर बाकी लोगों ने भी कॉपी कर लिया, तो मैंने भी उठा के डाल दिया था वो। एंड आई एग्री दैट वाज माय मिस्टेक, आई शुड हैव ये क्रेडिटेड बताइए, हूएवर। ये बताइए आपको बिग बॉस का चस्का लगा कैसे? ऐसा क्या है इसमें जो आप मतलब चिपक गए हैं बिग बॉस? एक्चुअली अभी ये मेरा नशा बन गया, आप ये बोल सकते हैं। आई एम एडिक्टेड टू बिग बॉस नाउ। पहले नहीं था, जब मैंने स्टार्टिंग में आई स्टार्टेड डूइंग इट, इट वाज जस्ट फॉर फन। मैं हफ्ते में एक बार कुछ डाल देता था, या दो हाँ हफ्ते में, फॉर फर्स्ट 2 to 3 years फॉर हाँ। फन। उसके बाद जैसे जैसे फॉलोअर्स इंक्रीज होने लगे, तो वो होता है ना कि व्हेन यू सी अच्छा पीपल आर लाइकिंग आवर ट्वीट्स और पीपल आर एंजॉयिंग आवर थिंग्स, तो फिर वो एक आपके अंदर एक मजा सा आने लगता है। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि अब नशा बन गया, बिग बॉस ही सब कुछ। अब मैं कहीं भी होता हूँ, कुछ भी होता हूँ, बस मेरे को बिग बॉस ही दिखता है। अब लोगों का प्यार भी है, लोग क्योंकि हमें इतने ज्यादा वो दे कीप हाँ वेटिंग लेकिन फॉर आप अस, भी अगर हम उसी गायब हो दुनिया से है ना, आप भी उसी दुनिया से हैं, जब फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो एक्साइटमेंट बढ़ती है आप लोगों की। देखो अभी एक्चुअली मेरे इतने होता है फॉलोअर्स हो गए, मोटिवेशन। अभी मेरे इतने हो गए, हर साल बढ़ते जा रहे हैं। नहीं एक्चुअली ये मैं बोलूंगा कि झूठ है तो ऐसा नहीं है, सच यही है। अगर आपको लग रहा है कि मोटिवेशन आपको फॉलोअर्स से ही मिलता है, अगर आपके फॉलोअर्स घट रहे होंगे, आपके ट्वीट्स में न्यूज में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो आपका मोटिवेशन खुद से खत्म हो जाता है। फिर आप बोलते छोड़ो क्या करना है मेरे को। तो फॉलोअर्स आर द मोटिवेशन, ये खाली मेरे लिए नहीं है, मैं सबके लिए ही बोलूंगा। और कोई भी हो और उसको लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा, वो 1 महीना 2 महीना 1 साल तक डालेगा, उसके बाद आप वो बंद ही कर देगा। उसको पता होगा मेरी चीज में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो जब आपको पता चल रहा है हाँ आप में लोगों को इंटरेस्ट है, पीपल आर इंटरेस्टेड इन टू योर अकाउंट, दे आर वेटिंग फॉर यू, तो फिर वैसे ही फिर मोटिवेशन आपको मिलता तो आपको है फॉलोअर्स एंड। फ्रेंड्स क्या बुलाते हैं? समीर बुलाते हैं, खबरी बुलाते हैं क्या अभी एक्चुअली मुझे? जो मेरे बिल्डिंग में क्या बुलाते हैं? एक्चुअली जो मेरे आसपास वाले फ्रेंड्स जितने भी जो रियल लाइफ वाले फ्रेंड्स हैं, वो मेरे को समीर ही बुलाते हैं, जो मेरा है नाम। बाकी जो सोशल मीडिया वाले जो फ्रेंड्स हैं जिनको मैं जानता हूँ ट्विटर से या उधर से, वो सब मेरे को खबरी ही बुलाते हैं। एक्चुअली दे डोंट कॉल मी समीर, दे कॉल मी खबरी। बट जो मेरे एक्चुअल में सामने दोस्त हैं, तो वो मेरे को समीर ही बुलाते चलिए मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता हूँ रिगार्डिंग बिग बॉस सीजन। ओके, हैं या। पहले मुझे ये बताइए कि सारे बिग बॉस में बोल्डेस्ट मोमेंट कौन सा रहा है? चाहे बोल्डेस्ट वो कुछ मोमेंट भी हो। इन, बोल्ड इन द सेंस, किस सेंस में आप बोल सकते हो कि किसी भी सेंस हॉरर में, सेंस किसी ने में कोई या। सच बोल दिया, किसी ने किस कर दिया, किसी ने कुछ
मतलब एक्सेप्ट कर, हाँ, मतलब कुछ ऐसा सच कर बोल दे जो दिया। हाईलाइट रहा हो, हाँ हाँ। या ओके आई विल से। देखो ऐसी बहुत सारी चीजें रही है, सपोज किसी को आपने बोला था ऐसा हुआ था कि बिग बॉस ओटीटी में ही आकांक्षा पुरी ने किस कर दिया था, बट आई डोंट थिंक वो उतना बोल्ड मूवमेंट था। बोल्ड मूवमेंट मैं बोलूंगा इसमें तब है जब एक बार गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला, उनका मैं मानूंगा कि दे वर द बोल्ड मूवमेंट्स। एक्चुअली क्या हुआ था कि गौहर खान ने सलमान खान को कन्फ्रंट किया था व्हेन सलमान खान वाज टेलिंग हिम समथिंग ऑन वीकेंड का वार, कि तुमने ये चीज गलत की है, ये गलत किया, ही वाज एक्चुअली टारगेटिंग हर। तो वहां पे गौहर खान ने सीधे सलमान खान के सामने स्टैंड लेके बोला था, मतलब चीख चीख के बोला था, नो वाई सलमान यू कांट से दिस। इस तरह से उसने सलमान खान को मतलब चुप करा दिया था, चुप नहीं मैं बोलूंगा, बट शी हैड द गट्स टू कन्फ्रंट हिम। वो एक मोमेंट था ऐसा, और दूसरा सिद्धार्थ शुक्ला वाला एक मोमेंट था। वहां पे क्या हुआ था कि बिग बॉस के घर में जब रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की एक लड़ाई हुई थी वहां पे, तो वहां पे सलमान खान भी अब सिद्धार्थ शुक्ला को समझा रहे थे कि भाई तुमने गलत किया है ये सब। हाँ। तो वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला का एक स्पीच आया था जो आज भी बहुत वायरल है, हर जगह सोशल मीडिया पे चलता है। सिद्धार्थ शुक्ला ने बोला था कि मेरे को ये सब घर में नहीं सिखाया गया है, मेरे को घर में ये सिखाया गया है कि लड़का हो लड़की हो सब बराबर हो। तो ये वुमेन कार्ड जो यहाँ पे खेला जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। मेरे को घर में ऐसा किसी ने नहीं सुनाया। मेरी मम्मी अगर होती थी तो वो मेरे को भी मारती थी, मेरी बहन को भी मारती थी। उसने कभी ये जेंडर में जो डिफरेंस है ये कभी नहीं सिखाया। मतलब बहुत अच्छा वो उनका रहा था सलमान खान के सामने। और सलमान खान भी वहां पे एकदम इम्प्रेस्ड हो गए थे, एकदम शांत हो गए थे। पहले उन पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जब सिद्धार्थ शुक्ला ने 2 मिनट का वो उनको भाषण दिया रिगार्डिंग इट कि लड़का लड़की में क्यों डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, बोथ शुड बी ट्रीटेड इक्वली, ऐसा नहीं कि लड़की के साथ कुछ करो तो नहीं ये लड़की है भाई इसके साथ क्यों किया। तो वो चीज आई एग्री वाज आल्सो वन ऑफ द बोल्डेस्ट मोमेंट। Which has been the worst fight? Obnoxious, ugly. Which has been the worst fight? वर्स्ट फाइट। मेरे को फिलहाल दो याद आ रहे हैं, जो फिर आप शायद भले तीसरा ले लीजिए। हाँ। एक था सिद्धार्थ शुक्ला और असीम रियाज का, हम्म। और एक था श्वेता तिवारी और डॉली बिंद्रा। एक्चुअली हाँ ये दो बहुत अच्छे फाइट्स, लेकिन देखो सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज का जो था ना उनका पूरा सीजन ही वो चला, वो सीजन ही बस उन दो के बीच में सिद्धार्थ वर्सेस बिटवीन देम हम्म ऐसा था। लेकिन हाँ वहां पे उस सीजन में एक और फाइट हुआ था, सिद्धार्थ शुक्ला वर्सेस अरहान खान। वहां पे सिद्धार्थ शुक्ला ने उसका टी शर्ट फाड़ दिया था। तो हम्म। आसिम के साथ भी था ही, तो उसको धक्के वगैरह बजते थे सिद्धार्थ से, लेकिन जो वो शर्ट फाड़ा था उसका, तो एक्चुअली इससे बड़ा जो मेरे को पर्सनली अगर आप बोलो, एक बार सीजन 7 में कुशाल टंडन वर्सेस एंडी हुआ था। उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था वहां पे। कुशाल टंडन ने उसको पकड़ के ऐसे गले से दबाया था, उसके बाद उसको एलिमिनेट कर दिया था एक्चुअली सीजन से, उसी टाइम घर से बाहर निकाल दिया था। तो वो भी एक बहुत बड़ी फाइट थी, और उसके बीच में फिर गौहर ने स्टैंड लेके वो भी घर के बाहर आ गई थी। तो वो फाइट भी ठीक ठाक थी। सारे सीजन्स में अगर एक वोट देना हो स्मार्टेस्ट कंटेस्टेंट, बहुत ही चतुर, बहुत ही चालाक, आपके हिसाब से कौन? एक्चुअली आई वुड गो विद विकास गुप्ता। विकास गुप्ता सीजन 11 में आए थे और उनको मिला ही था टैग मास्टरमाइंड का। हम्म। तो उनकी हर एक मूव, अगला बंदा क्या करने वाला है, अगला कंटेस्टेंट का क्या मूव होगा, वो बहुत स्मार्ट थे उस रीडिंग में। और उनको मास्टरमाइंड का टैग टैग भी मिला था। एक तो विकास गुप्ता, और एक्चुअली मैं एक और नाम लूंगा वो है मनु पंजाबी का। मनु पंजाबी बिग बॉस 10 में आए थे। उनका भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पैटर्न था एक्चुअली। उनको विकास गुप्ता को मास्टरमाइंड बोला गया, तो मनु पंजाबी की स्ट्रेटजीज को उतना शायद वो नहीं मिला रिकग्निशन जितना मिलना चाहिए था। हम्म। बट ही वॉज ऑल्सो स्मार्ट, सो फर्स्ट विकास गुप्ता, सेकंड आई वुड कीप मनु पंजाबी, क्योंकि वो सीजन मैंने बहुत क्लोजली फॉलो किया था। और उसका भी यही होता था कि पहले ही बोल देता हाँ ये होने वाला है, वो कंटेस्टेंट ये करने वाला है। तो ही वॉज ऑल्सो वेरी स्मार्ट। सबसे बुद्धू कंटेस्टेंट, सबसे बुद्धू, जो सबसे फिट बुद्धू नहीं, कंटेस्टेंट। मतलब गेम के लिए, मतलब नॉट स्ट्रीट स्मार्ट, इनोसेंट बोलो, जो भी बोलो। खैर आजकल के जमाने में तो कोई इनोसेंट है ही नहीं, इनोसेंस तो जा चुका है दुनिया से। बट एक्चुअली नहीं, एक्चुअली है बहुत सारे कंटेस्टेंट ऐसे आए हैं जो मतलब इस शो के लिए बने ही नहीं थे, लेकिन उनको वो एक्चुअली इतने अच्छे थे, सीधे साधे थे, बोले थे कि उनको सीजन में आने ही नहीं चाहिए। एक थे यहाँ पे रोहन गुप्ता, रोहन गुप्ता आए थे नहीं रोहन, एक्चुअली उनका नाम मेरे को अभी, रोहन मेहरा, रोहन मेहरा थे।
तो वो भी थे एक कंटेस्टेंट ऐसे। उसके बाद एक आई थी रिसेंटली बिग बॉस 14 में, जिया शंकर थी वैसे, जो अभी सीजन खत्म हुआ। तो वहां पे वो भी मतलब डम्ब थी, वो उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, किसके साथ जाना है, कब क्या करना है। तो और ऐसे कंटेस्टेंट में इस सीजन में जो फिट नहीं होते थे एक्चुअली, वो ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे थे जो इस सीजन में फिट नहीं होते थे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक्चुअली मेरे को अभी नाम उतने याद मेरे नहीं ख्याल है। से एक थी बट और जो बहुत ही सीधी सादी, मतलब दलजीत कौर। दलजीत कौर ठीक है, बट फर्स्ट था एपिसोड। वो तब भी पार्टिसिपेशन वो करती थी वो तब भी। लेकिन ऐसे भी कंटेस्टेंट, रिमी सैना करके आई थी, एक एक्ट्रेस आई थी, वो सीधा घर में चुपचाप करके बैठ जाती थी, वो मतलब हिलती भी नहीं थी। सलमान खान ने उसको बुला रहे, भाई बोल कुछ, बोल कुछ, बोल कुछ, वो कुछ करती ही नहीं थी, बोलती नहीं मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है, मेरे को नहीं रहना। उसको 2 करोड़ मिले थे, तो बस वो हिलती भी नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे, वो एक्चुअली उसका नाम मैं लूंगा, क्योंकि उसको सलमान खान ने बार बार बोला था, "अरे कुछ करो कुछ करो", और वो जब सलमान खान चले जाते वो बोलते नहीं मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को ऐसे ही बैठना। और वो हिलती भी नहीं थी, ना किससे बात करती आप थी, ना कह कोई रहे हैं उनको पार्टिसिपेशन था आप कह रहे हैं उनको 2 करोड़ मिले थे। सबसे हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट कौन रह चुका है आज तक? चलो। एक्चुअली देखो, इसमें रूमर्स बहुत सारे आते हैं कि इसको मिले बिल्कुल। उस सीजन में जब उसको 2 करोड़ आए थे। वो अब वो तो उन्होंने तो हमें बताया नहीं, बस यही है, उधर इधर से न्यूज मिल जाती है कि हाँ भाई इसको चलो, मिले र्यूमर होंगे था। इतने, हमें इतने। र्यूमर सबसे बड़ा किसका रहा है आपके कान में जो आया है? देखो, ये अमाउंट तो कोई किसी का, न हीरो न हीरोइन न बॉलीवुड में कोई भी असर्टेन करता है, बट ये हम्म। रिपोर्ट्स लिखी हाँ जाती हाँ। है, तो रिपोर्ट्स के अप्रोक्सीमेशन। अकॉर्डिंग देखो, आपको समझना पड़ेगा, पहले अगर सपोज 2 करोड़ किसी को मिलता था, वो टाइम पीरियड ही वैसा था, तब पैसा भी कम होता था। तो अभी क्योंकि जो मोस्ट रिसेंट है, अभी क्योंकि ज्यादा पैसे मिलते हैं, सपोज आप कंपेयर करो बॉलीवुड, पहले अगर 1 करोड़ मिलता था तो अभी 100 करोड़ तो एक्टर ही लेता है, क्योंकि वो फिर इकोनॉमी वो सब चीजें भी मैटर करती है। तो अभी रिसेंटली बिग बॉस 16 में आई थी सुमन तोकेर खान, तो उसको बोला जा रहा था उसको 14 to 15 करोड़ मिल रहा था पर लैख, सॉरी, 14 to 15 लाख उसको मिल रहा था, तो पर वीक। तो वो अभी थे, बट ऐसा वन टाइम वाला जो अमाउंट आप बोलोगे, क्योंकि ऐसे भी कंटेस्टेंट है जिनको सीधे एक बार बोल दिया है कि आपको 2 करोड़ मिलना है, चाहे आप एक दिन रहो, 2 दिन रहो, या जितने मर्जी टाइम रहो, आपको वन टाइम अमाउंट है 2 करोड़। तो वो रिमी सेन था उस टाइम। तो उसके बाद आई थिंक मेकर समझ गए, फिर उन्होंने इस चीज को हटा दिया, फिर वो वन टाइम अमाउंट किसी को देने नहीं लगे, क्योंकि वो समझ में आ गई इनको हम अंदर भेजते हैं, इनको पता है हमें 1 करोड़ तो मिल गया, तो फिर ये ड्रामा चुपचाप करके बैठ जाते हैं, ये पार्टिसिपेशन करते ही नहीं है। तो उस सीजन के बाद फिर उन्होंने वो जो वन टाइम अमाउंट था आई थिंक बंद कर दिया, और फिर वीकली पे करना स्टार्ट किया, जितने किसकी हफ्ते किसकी रहोगे उस जीत हिसाब से आपको आपको सबसे पेमेंट। ज्यादा चकित किया है? मतलब यू वर शॉक्ड, ये जीत गया, कैसे जीत गया? हाँ। शॉक्ड एक्चुअली। या मैं याद कर रहा हूँ थोड़ा, कि जो जो जीतना डिजर्व नहीं करता था, ऐसा लगता है मेरे अकॉर्डिंग नहीं जीतना चाहता, बट वो जीत गया है ना। एक्चुअली एमसी स्टैन, ओके। आई वाज रियली शॉक्ड। मैं शॉक्ड नहीं था एक्चुअली, एवरीवन वाज शॉक्ड वो कैसे जीत गया। बिग तो बॉस 16 उसने आप जीता। क्या सोच रहे थे कौन जीतेगा? उस सीजन में उसका पार्टिसिपेशन बिल्कुल जीरो था ना, हाँ। वो कोई हर एक चीज में कुछ नहीं करता था, बस बैठे ही रहता था वो। और मैं हम अगर ट्विटर पे थे, सोशल मीडिया पे भी देख ही रहे थे, तो उसका हाइप भी उस तरह का नहीं था। इंस्टाग्राम पे फिर देखा हमने बाद में कि वो आगे लोग जस्ट बिकॉज वो एक सिंगर है या वो रैपर है, उस वजह से उसको वोट किया, बट सोशल मीडिया पे उसका बिल्कुल हाइप नहीं था। आई वाज एक्सपेक्टिंग वो नंबर 3 पे रहेगा, और कंपटीशन शिव ठाकरे वर्सेस प्रियंका चौधरी है, जिनका सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा फैन बेस दिख रहा था, और उनका पार्टिसिपेशन भी शो में बहुत ज्यादा था। बट वी वर रियली शॉक्ड कि जब हमको पता चला प्रियंका एलिमिनेट हो गई, और टॉप 2 में फिर वो एमसी स्टैन और शिव ठाकरे पहुंचे, और एमसी स्टैन वाज शॉक फॉर एवरीवन। सब जितने भी लोग गेस कर रहे थे, किसी ने ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पीपल वर गेसिंग कि प्रियंका ही जीतेगी, या फिर सेकंड शायद शिव जीत सकता है, बट एमसी स्टैन जीता, तो दैट वाज रियली आपको शॉकिंग भी लग फॉर रहा था एवरीवन। प्रियंका ही जीतेगी? हाँ, मेरे को भी लग रहा था प्रियंका जीतेगी। हम्म, हम्म, दिस इज द ओनली टाइम जब हम गलत हुए एक्चुअली। हम्म। ओके। So, what do you do apart from Big Boss? If that is the correct question. फिर मैंने आपको पहले, In 2 months you're okay, या यू 2 months कैन, you're busy, but apart from that, or especially सुबह में घर पर, what exactly is your profession? मैं सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन, Hmm. तो वही काम रहता है हमारा, कंस्ट्रक्शन का। Hmm. आई एम सिविल इंजीनियर। Okay. तो बाकी
जब तो टाइम मिलता है वहां पे भी ट्विटर खोल लिया, उधर इधर नजर मारी साथ साथ में। वो भी क्यों, एक फ्रेंड भी है मेरा जो ट्विटर मेरे साथ भी हैंडल करता है सोशल मीडिया हमारे। तो जब उसको कुछ मिलता है तो वो भी पोस्ट कर देता है अगर मैं कहीं बिजी हो जाता हूँ। आपको कजिन है भी एक्चुअली वो ऑफर मेरा। आया है राइट, बिग बॉस में पार्टिसिपेट करने का? एक बार आया था बट तब उन्होंने पैसे इतने ज्यादा बोल दिए कि मैं फिर चुप ही हो गया, मैंने कहा नहीं, रहने दो भाई। तो एक्चुअली उन्होंने तब ये बोला था कि 20,000 मिलेगा कॉमनर को। फिर वहां पे यही था कि ठीक है, अगर आप 20,000 दे रहे हो तो फिर गारंटी है कोई कि हम रहेंगे किस टाइम, कितने टाइम रहेंगे, क्या रहेंगे। तो उसकी चीज की गारंटी भी नहीं थी कि फिर हम जाएंगे यहाँ लाख रुपए खर्च करके वहां 3 दिन में बाहर आके निकल जाएंगे, तो हाँ। हमारा कुछ बचेगा नहीं फिर हमारे पास। तो ऐसा शो है यहाँ पे, आपकी रेस्पेक्ट भी मतलब इज ऑन स्टेक, कुछ भी हो सकता है शो में, आपकी इमेज बन भी सकती है, बिगड़ भी सकती है। तो फिर हो ही नहीं बात। और आने वाली सीजन में जो भी अभी नाम आपने सुने हैं हवा में उड़ते उड़ते, उनमें से आप किसके बारे में ज्यादा अपबीट हैं? मतलब शायद ये जीत सकता है। एक्चुअली आपको ना देखो, यहाँ पे टीवी वाले जो स्टार्स हैं पहले उनका हाइप बहुत ज्यादा होता था, अभी भी इस बार भी 2 नाम मेरे पास कंफर्म्ड आए हैं, ईशा मालविया एंड अभिषेक कुमार, ये जा रहे हैं इस सीजन में। और भी अंकिता लोखंडे का नाम भी है, वो कंफर्म्ड है ऑलमोस्ट। और भी उसका हस्बैंड इस बार इनने, क्योंकि वो कपल्स ले रहे हैं बहुत ज्यादा। तो ऐश्वर्या शर्मा है उसका वो फियांसी हस्बैंड है नील, वो लोग जा रहा। तो एक्चुअली आपको ना, मैं क्योंकि टीवी से उतना कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं सीरियल्स देखता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि सीरियल्स में कौन कितना फैन बेस किसका है। जब वो लोग घर में जाते हैं तब पता चलेगा। हाँ आई एग्री, सीरियल्स वालों का अच्छा फैन बेस होता है, लेकिन अगर कोई सोशल मीडिया सपोज यूट्यूबर आ गया कोई भी एक, तो ही विल बीट एवरी टीवी स्टार, कोई भी क्यों ना हो, कितना भी हाइप क्यों ना हो उसको हो। अगर कोई 8-10 मिलियन वाला ही यूट्यूबर आ जाए तो ही विल बीट एवरीवन, क्योंकि हमने ये चीज, मैं पिछले 2 सीजन से देख रहा हूँ। एमसी स्टैन आया, उसके सामने बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े दिग्गज थे, और उसके आसपास कोई था ही नहीं। इस सीजन में भी बहुत टीवी स्टार्स थे, लेकिन एलवी शाद और फुकरा इंसान के आसपास कोई था ही नहीं। इजीली ये लोग टॉप 2 में आ गए। तो जो सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर है, क्योंकि यूथ इनके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहती है, तो टीवी सीरियल्स, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो टीवी सीरियल्स देखता नहीं है। हमारे घर में सपोज हमारी मम्मी वगैरह देखते होंगे, जो एल्डर लोग हैं वो देखते होंगे सीरियल्स। तो वो लोग फिर बिग बॉस उतना फॉलो नहीं करता ना, उनको वोटिंग के रिलेटेड उतनी इन्फॉर्मेशन होती है। तो बिग बॉस जो यूथ है मोस्टली अप टू 35 या अप टू 40 मैक्सिमम लोग देखते हैं। तो वो लोग अब सीरियल्स उतने देखते नहीं है, वो रियलिटी शोज या सोशल मीडिया यही फॉलो करते हैं, और वो उनके ही फैंस हैं। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से किसी की टक्कर नहीं होगी अगर कोई आया अगेंस्ट ऑल दोस टीवी स्टार्स। तो समीर, सोर्सेस कौन है, कौन से सोर्सेज आपने प्लांट किए हैं? एक्चुअली हमारे सोर्सेज हर सीजन बदलते रहते हैं। ये ठीक। कुछ लास्ट 2-3 साल से इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले कलर्स पे आता था, फिर जियो सिनेमा पे आए। पहले सोर्सेज थे हमारे की ऑडियंस अलाउड होती थी पहले, कोविड के टाइम से पहले, तो वहां से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। फिर जब ऑडियंस बंद हो गई, फिर सलमान वहां पे कोई अलाउड नहीं था, फिर हमारे सोर्स थोड़ा चेंज हुए। उसके बाद आप जियो सिनेमा पे आ रहे थे तो फिर से सोर्स चेंज हुए। अभी इस ईयर के लिए अभी कोई प्लान्ड नहीं है, बट हो जाएगा। हो जाएगा। बातचीत चल रही है एक्चुअली। आप एक ऐसे कॉन्फिडेंट जर्नलिस्ट की तरह बोल रहे हैं कि ठीक है मैं कर लूंगा। नहीं एक्चुअली क्योंकि है बातचीत है, लोग हैं जिनसे बात हुई है कि हाँ तो ये हो सोर्सेज जाएगा। मतलब ऑन अ फ्रेंडली नोट होते हैं, ये प्रोफेशनली आपके लिए काम नहीं करते हैं? नहीं अभी रिसेंटली 1-2 साल से अब ये प्रोफेशनली हो रहा है, थोड़ा उससे पहले फ्रेंडली होता था, लेकिन जब से हम सीरियस थोड़ा हो गए इस ट्विटर वगैरह को लेकर, तब से थोड़ा उनको भी सेटिस्फाई करना पड़ता है। तो ऐसे अब कोई न्यूज़ नहीं देता। I admire your passion for Big Boss. Thank you so I much. hope it continues as much as it is today, even in years to come. And I wish you all the best, Samir, in all your work and whatever you take up in your life. And a big thank you to you for being on Times Network with me and talking to me face to face. Actually, I would thank you for calling me and taking my interview. Now everyone will see who the Khabri is. And thank you so much for all those nice and sweet words. Thank you, Kabri. Yeah, thank you so much. It was so nice talking to you.